हेलो गाइस, आई एम सैम इरफान और ये वाला पेपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस ऑफ 11th क्लास जो आज हुआ था साइंस स्ट्रीम का। तो उसके आंसर्स मैंने गूगल से डिटेल में बहुत अच्छे से देखे हैं और हम लास्ट में बताएंगे कि मुझे ये पेपर कहाँ से मिला। तो चलिए हम सब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आंसर है इसका, इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर है होल नंबर। इन द सेकेंड ऑप्शन द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इन द थर्ड क्वेश्चन द डी आंसर वुड बी करेक्ट, -5/3, एंड इन द 14th would be the correct answer, and fifth question में B would be the correct answer, and sixth question में जो मैथ्स का भी सेक्शन चल रहा है तो गाइस ऑप्शन C would be the correct answer, and in seventh question option number A would be the correct answer 3. In question number 8 the option number 13/2 would be the correct answer, and question number 9 the 8 and 4 would be the correct answer. And if we move to the question number 10, then 24,000 and 21,000 would be the correct answer. And 11th question, C would be the correct answer. In 12th question, 12 would be the correct answer. In question number 13th, yes, 73 would be the correct answer. In question number 14, 7 would be the correct answer. In question number 15, the 115 degree would be the correct answer. And if we move to the 16th question, then a square would be the correct answer, and 17th question में 8 centimeter would be the correct answer, and 18th question में 20/3 would be the correct answer. And if we move to the next page, then इसमें 1 centimeter would be the correct answer of the 19th question, and in 20th 11.2 centimeter would be the correct answer, and 21th में 192 would be the correct answer. and ये जामिया के पेपर के सिमिलर जैसा लग रहा है. In question number 22, D would be the correct answer, and in question number 23, 6 would be the correct answer. In question number 24, √3 would be the correct answer of this question. And guys, in 25th question, B would be the correct answer, and in 26th question, 1 would be the correct answer, and in 27th question, D would be the correct answer of this question. 28th number, B would be the correct answer. Okay, or 29th question, B would be the correct answer, and 30th question, C would be the correct answer. And in 31 क्वेश्चन C would be the correct answer. और यहाँ से 31 क्वेश्चन से शुरू हो चुकी है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, आई थिंक सो. 32 में तो गाइस 32 में पाली would be the correct answer. 33 में ऑर्डर ऑफ जायद would be the correct answer, and to which country does Greenland belongs to डेनमार्क में वो सिचुएटेड है, सो इसीलिए. एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर would be the correct answer of 35th क्वेश्चन, वेटिंग फॉर अ वीज़ा. 36 क्वेश्चन में माई डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज ऑलमोस्ट इलेजिबल, C वुड बी द करेक्ट आंसर. 37 में B वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड इफ यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 में एक्सप्लेन्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, एंड 39th में A वुड बी द करेक्ट आंसर. In 40th question, C would be the correct answer. In 41th, खान अब्दुल गफ़ार खान would be the correct answer. And again, C जो हिंदी वाले हैं पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये सेम चीज़ें इंग्लिश में ही छप गई है, तो अच्छा हुआ. ठीक है. 42 में A would be the correct answer, and in 43rd में C would be the correct answer. 44 में हैदराबाद would be the correct answer. फिर 45 में मुरादाबाद would be the correct answer. ठीक है गाइस, तो आप ऐसे चेक कर लीजिए. एंड गाइस 46 में A वुड बी द करेक्ट आंसर. 47th में D वुड बी द करेक्ट आंसर. इन 48th क्वेश्चन C वुड बी द करेक्ट आंसर. इन 49th क्वेश्चन काजी मलिक वुड बी द करेक्ट आंसर. 50th क्वेश्चन में 1866 वुड बी द करेक्ट आंसर, एंड D would be the correct answer of 51th क्वेश्चन. यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है. एंड 52 में ज़ीरो एक्सेलरेशन would be the correct answer, and in 53 4.65 would be the correct answer of this question, and 50 Newton would be the correct answer of 54th question. 55 में C would be the correct answer, mean 4 times society, and 50th क्वेश्चन में 4th would be the correct answer. 375 would be the correct answer of 57th question, and C unitless would be the correct answer of relative density, क्योंकि वो रेशियो होती है. 59th क्वेश्चन में D would be the correct answer, and 60th वाले क्वेश्चन में C would be the correct answer, 1/5 एम्पेयर. सो गाइस 61th वाले क्वेश्चन में D would be the correct answer, 1 ohm. 62 वाले क्वेश्चन में 0.2 टेस्ला would be the correct answer.
एंड इन 63rd क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल वुड बी द करेक्ट आंसर. 64th में रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड वुड बी द करेक्ट आंसर. And in 65, 2.25 into 10 raised to power 8 would be the correct answer meter per second. The human eye, इसमें B accommodation would be the correct answer. 67 में methane is a biogas and this saponification, esterification forward direction में जाता है, saponification backward direction में जाता है, तो this would be the correct answer of this statement. ठीक है, और कंबशन रिएक्शन है ये, तो 69 का ये आंसर हो जाएगा. 70 का अनियन इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर. ठीक है, 71 में ये वुड बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन. जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा. एंड कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो दिस वुड नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो कहीं 72 में बी वुड बी द करेक्ट आंसर. And if we move to the next question, then B would be the correct answer, decomposition into silver and chlorine. And 74 में C would be the correct answer, C. And cinnabar is the ore of mercury, तो ये 75 में D would be the correct answer. 76 में gold and silver would be the correct answer. Group of metal found in free state. And pure gold 24 कैरेट, ये तो आपने सुना ही होगा, तो A would be the correct answer. And 78 varies with the nature of the gas and discharge tube. ठीक है, एंड 79th में 0.480 वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, 80th क्वेश्चन में मास परसेंटेज 7.5 वुड बी द करेक्ट आंसर, कंसंट्रेशन. एंड इफ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑल ऑफ द अबव विच इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन. तो 82 में ये वाला और इस 81 में ये वाला ऑप्शन वुड बी द करेक्ट. एंड P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गेलो-सैक लॉग, तो 83 में ए वुड बी द करेक्ट आंसर. pH of the rain water is slightly acidic होता है ना, 5.6 would be the correct answer. And 85 में small intestine would be the correct answer. And I think so यहाँ से हमारी बायो शुरू हो चुकी है. ठीक है, and osteocyte is a part of compact bone. 86 का ये. 87 में trachea, जिसमें ring and cartilaginous structure present, which is not a part of the structure of neuron. तो thymus से तो neck में होता है ना हमारा, और axon dendrite cell body neuron के structure हैं, तो thymus would be the correct answer. एंड 89th में लाइजोसोम आर कॉल्ड दी सुसाइड बैग्स ऑफ दी सेल. एंड टेप्टम सेल्स जो होती हैं और जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जो लिक्विड, सो गाइस लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, तो इसमें मेनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है सिंचाइशियम, तो इसीलिए इसमें मेनी सेल्स होते हैं. सो 90 का मेनी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट. एंड द पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ 91th क्वेश्चन. एंड 92 वाले क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, सेल नहीं. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करा था, वो भी नॉन लिविंग, फ्रॉम द कॉक सेल. ठीक है, काला अजहर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन डिजीज़ है ये. एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल, ये तो सबका सही हो गया होगा. ठीक है, 95 में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. जो चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये इसी के लिए हुआ था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए. सो 96 में कीमोट्रोपिज्म वुड बी द करेक्ट आंसर. 97 में मियोसिस 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस 2 को कहते हैं. ठीक है, एंड 98 में 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड 99th में प्रोटोकॉर्डेटा वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड 100th क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सैलामेंडर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं. ठीक है, एंड रेप्टिलिया में फ्रॉग होते हैं. ठीक है, ये इसमें बर्ड्स होती हैं, पाइसेस में फिशेस होती हैं, तो ऐसे. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझको बताइएगा, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी मुझको बताइएगा ज़रूर. ये मेरी बहन है, उसने 11th का एंट्रेंस दिया था जामिया में, एंड अब अलीगढ़ में भी उसने एंट्रेंस दे दिया. सो गाइस, ये मेरी बहन का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अभी आपको दिखाया. उसने जामिया एंड अलीगढ़ दोनों का एग्ज़ाम दिया था. सो आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा. ये मैंने बिल्कुल डिटेल रिसर्च करी थी अपनी गूगल जेमिनाई, एंड हर एक चीज़ से मैंने रिसर्च करके आपको ये सोल्यूशंस बताए हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं. एंड बिल्कुल आप इससे सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैंने नहीं, ये पूरी रिसर्च करके मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड करे हैं. और अगर आपको ये वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ बस आप लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझको पता चले कि इट इज़ हेल्पफुल. तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 10 लाइक्स कर दीजिएगा. एम रखते हैं इस वीडियो पे. एंड ये कहाँ उड़ गया. तो गाइज़, आपका भी ये सिलेक्शन हो जाए. आई विल प्रे. एंड बाय गाइज़. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है. सो गाइज़, सब्सक्राइब टू साइमा इरफान. ये